Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15 study note number 4. Today we will solve illustration number 8, but before solving illustration number 8 we will discuss two concepts, okay, which are, see, we have completed up to 4.2. Just one illustration, that is illustration number 8 is remaining. We will complete it today, but after that, after illustration number 8 there is one concept, that is enterprise resource planning 4.3, and next one, that is 4.4, that is benchmarking. Okay, so we will discuss those concepts, and after discussing that we will go for illustration number 8, which is very important and very easy also, but you have to understand some calculations. Okay, so let's start. First of all, 4.3, that is enterprise resource planning. Okay, ERP. ERP is the process or system used by the companies to manage and integrate the important resources like men, material, machine, money, etc. Okay, of their businesses. So ERP is basically ऐसा process है जो companies use करती है to manage and integrate their important resources. अभी कंपनी में तो बहुत सारे resources होते हैं, like men यानी कि लेबर, मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो, मनी यानी कि जो भी कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट किया जाता है कंपनी में वो, मशीन जो भी इक्विपमेंट्स रहता है, मशीन्स रहता है, प्लांट्स रहता है कंपनी का, वो सब रिसोर्सेज को हम लोग को मैनेज करना है, इंटीग्रेट करना है यूजिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, दैट इज ERP. ERP attempts to integrate all the departments and functions across a company into a single computer system that can serve all those different departments in particular needs. Okay, so ERP बेसिकली ऐसा सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है ऑल डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द कंपनी. जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है कंपनी में और जो भी फंक्शनिंग होता है कंपनी, वो सबको एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है, उसको हम लोग ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं. ओके, सो बेसिकली ERP इज अ सिस्टम विच हेल्प्स टू मैनेज द कंपनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, एक्सेट्रा, एंड ERP helps a company to integrate the functions and department data in one single computer, which will help to satisfy the need of that particular department or the company. So this is the ERP, which is very simple concept. Next concept is benchmarking. Okay, next concept is benchmarking. Benchmarking, which is given in 4.4. Okay, next to that, so benchmarking involves comparison of actual results with an established standard or targets. So benchmarking क्या करता है कि comparison करता है एक्चुअल रिजल्ट्स विथ एन एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड और टारगेट. हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टारगेट सेट करते हैं और हम लोग का जो एक्चुअल रिजल्ट आया है उसका कंपैरिजन किया जाता है बेंचमार्किंग में. द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट्स यूजिंग एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज बेंचमार्किंग. ओके, सो नॉर्मली भी हम लोग का जो भी नॉर्मल डे या फिर नॉर्मल रूटीन रहता है, नॉर्मल स्टडीज़ हम लोग करते हैं, वो टाइम पे हम लोग भी स्टैंडर्ड सेट ही करते हैं ना कि हम लोग को आज इतना इतना पढ़ना है. लाइक दैट कंपनीज में भी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है यूजिंग एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बेंचमार्किंग बोलते हैं. Benchmarking is the establishment through data gathering of targets and comparatives with which performance can be assessed. So benchmarking basically क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग को परफॉर्मेंस असेस करना है. वी हैव टू असेस द परफॉर्मेंस यूजिंग बेंचमार्किंग बिकॉज बेंचमार्किंग इज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स एंड टारगेट्स. It means we have set target and we have achieved that particular target, but up to what extent? दैट आंसर वी विल गेट इन दिस कंपैरिजन. ओके, सो हम लोग ने एक टारगेट सेट किया, उसके ऊपर काम किया तो एक्चुअल रिजल्ट्स मिला, लेकिन हम लोग का एफिशिएंसी कितना था, हम लोग ने किधर तक वो टारगेट रीच किया, वो कैसे समझेगा? ये कंपैरिजन की वजह से समझेगा. सो बेंचमार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज. ओके, विच विल हेल्प देम टू analyze their performance, to assess their performance. Okay, so here we have completed the concept of benchmarking. So now we will solve illustration number 8. Ultra video company sells package of a black video tapes to its customer. Okay, there is one company which is selling tapes to its customer.
It purchases video tapes from Yash company at 150 per पैकेट. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इसमें रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी चीज़ें हम लोग को दी हुई है तो हम लोग को वो समझनी पड़ेगी. ओके, सो यश कंपनी है जो प्रोवाइड करती है अल्ट्रा वीडियो कंपनी को जो पैकेट्स है वो 150 पर पैकेट. ओके, द यश कंपनी पेज all freight to the Ultra company. No coming inspection is necessary because Yash company has superb reputation for delivery of quality merchandise. So इधर बोला है कि यश कंपनी क्या करता है, ऑल फ्रेट पे करता है टू अल्ट्रा कंपनी, और यश कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, वो एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है. सो दिस यश कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग वेल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वेल क्वालिटी टू द कस्टमर, सो दैट्स वाई नो नीड ऑफ इंस्पेक्शन. नेक्स्ट इज annual demand for ultra video company is 15,600 packages. So this is the annual demand. Okay, this is the annual demand and this is the rate per packet. Okay, so ultra video company requires 10% annual return on its investment. Okay, so 10% annual return ultra company चाहती है उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर. The purchase order lead time is 2 weeks. Okay, so this is very important. 2 weeks का purchase order का lead time है. The purchase order is passed through internet and it cost 20 per order. This is also very important because ये क्या है, ordering cost है 20 per order. The relevant insurance, material handling etc. rupees 10 per package per year. Okay, so there is no need to calculate anything because this is given per year rupees 10. जो भी अदर हम लोग का कॉस्ट रहता है छोटा मोटा, इंश्योरेंस, मटेरियल हैंडलिंग एंड ऑल, वो हम लोग को 10 रुपीज़ बोला है पर ईयर. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, अल्ट्रा वीडियो हैज़ टू डिसाइड वेदर और नॉट टू शिफ्ट टू द जीट परचेसिंग. ओके, सो जो अल्ट्रा वीडियो कंपनी, मतलब अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम ही अल्ट्रा वीडियो कंपनी में काम करते हैं. सो अल्ट्रा हमारा जो कंपनी है वो क्या करता है, वो थिंक कर रहा है कि हम लोग को शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं जीट में. ओके, जीट सिस्टम में हम लोग को शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं. फ़िलहाल अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन में हम लोग प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं कि हम लोग यश कंपनी से हम लोग परचेस कर रहे हैं नॉर्मल वे में, जीट में नहीं. ओके, वी आर परचेसिंग फ्रॉम यश कंपनी in a normal way. We are not following JIT right now, but we are thinking about JIT system. Okay, Yash company agrees to deliver 100 packages of video tapes 156 times per year, that is 6 times every 2 weeks. Okay, instead of existing delivery system of 1200 packages 13 times a year. Okay, अभी इसमें JIT का कौन सा है और एग्जिस्टिंग कौन सा है सिस्टम, ये अच्छे से समझना पड़ेगा. ओके, रीड द सेंटेंस केयरफुली. सी, existing delivery system, it means this is the existing delivery system, that is 1200 packages 13 times. this is existing, यानी कि प्रेजेंटली अभी ऐसा काम चल रहा है. और ये जो बोला है 100 पैकेजेस 156 टाइम पर ईयर, ये हम लोग का जीट में है. ओके, सो दिस इज फॉर जीट एंड दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग. नेक्स्ट इज with an additional amount of rupees 0.05 per package. this is for this additional amount, मतलब जीट अगर हम लोग ने लिया तो हम लोग को ये थोड़ा एडिशनल कॉस्ट पड़ेगा. ओके, बिकॉज कॉमा इज देयर, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू दिस. सो जो जीट का सिस्टम है ये वाला, उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा. अल्ट्रा वीडियो कंपनी इनकर्स नो स्टॉक आउट्स अंडर इट्स करंट परचेसिंग पॉलिसी. अभी करंट परचेसिंग पॉलिसी में स्टॉक आउट्स हो ही नहीं सकता बिकॉज करंट परचेसिंग पॉलिसी है उसमें नॉर्मल वे में परचेसिंग हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा लॉट हम लोग परचेस करके रख रहे हैं, तो उसमें कैसे स्टॉक आउट होगा. ओके, सो वी आर फॉलोइंग राइट नाउ नॉर्मल परचेसिंग सिस्टम. in that case there will be there is a no stock out because we are purchasing extra units. Okay, but in the JIT system we know that we purchase the quantity as per our requirements. it means there will be no stock in case of JIT. JIT में
जो स्टॉक रहता है वो ना के बराबर रहता है, मतलब स्टॉक होता ही नहीं है जीट में। ओके, सो अभी तो करंट सिचुएशन में बोला है कि स्टॉक आउट्स नहीं होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द अल्ट्रा वीडियो कंपनी विल इनकर स्टॉक आउट ऑफ 50 वीडियो टेप पैकेजेस अंडर जीट परचेज पॉलिसी। ऑब्वियसली अगर जीट किया तो थोड़ा बहुत तो स्टॉक आउट्स हो ही जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली तो डिलीवरी हर टाइम मिलेगा नहीं, राइट। तो थोड़ा बहुत स्टॉक आउट्स होता रहता है जीट में। सो स्टॉक आउट ऑफ 50 यूनिट्स, ओके, 50 वीडियो टेप्स यानी कि 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो रहा है जीट में। इन द इवेंट ऑफ स्टॉक आउट, अल्ट्रा वीडियो कंपनी हैज़ टू रश ऑर्डर टेप पैकेजेस विच कॉस्ट 8 पर पैकेज। सो स्टॉक आउट की वजह से हम लोग का इन शॉर्ट लॉस हो रहा है, 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹8 पर पैकेज, राइट। कमेंट वेदर द अल्ट्रा वीडियो कंपनी शुड इम्प्लीमेंट द जीट सिस्टम। ओके, सो अभी हम लोग को क्या क्या एनालिसिस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेजेंट सिचुएशन, आफ्टर दैट जीट विथ यश कंपनी, एंड नेक्स्ट और क्या इन्फॉर्मेशन है, राम एंड कंपनी ऑल्सो सप्लाइज द वीडियो टेप्स। ओके, सो अभी न्यू दूसरा एक कंपनी है, दूसरा एक सप्लायर है, उसके बारे में बोला है। it agrees to supply 145 per package under JIT delivery system. So Ram and company is providing 145 per package, and this Yash company is providing 150 in the current situation, and 150.05 in the JIT system. But this Ram and company is cheaper, that is 145 में वो लोग provide कर रहे हैं JIT system. If the video tape is purchased from Ram and company, relevant carrying cost would be 9. Okay, जो यश कंपनी उसमें जो रिलेवेंट अदर कॉस्ट था वो ₹10 था, लास्ट पेज पे हम लोग ने पढ़ा था, लास्ट लाइन, और इधर है ₹9. सो आई थिंक दिस इज़ चीपर दैन द यश कंपनी का सिस्टम. नेक्स्ट, ₹9 per package against ₹10 each, 10 in case of purchasing from यश कंपनी. वही बोला है कि यश कंपनी में ₹10 लगता है और इधर हम लोग को ₹9 पड़ेगा. However, Ram and company does not enjoy a sterling reputation for quality. Okay, so maybe ये न्यू कंपनी रहेगा, so उसका उतना रेपुटेशन नहीं है जितना यश कंपनी का है. Ultra Video Company anticipates the following negative aspects of purchasing tapes from Ram and Company. So Ram and Company के यहाँ से अगर हम लोग ने परचेस किया तो कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि कॉस्ट हम लोग को बेयर करना पड़ेगा. Incurring additional inspection cost 0.05 per package because Ram and Company is not that much reputed company. So हम लोग को कुछ इंस्पेक्शन कॉस्ट करना पड़ेगा, वो पर पैकेज दिया हुआ है. एवरेज स्टॉक आउट 360 टेप्स packages per year would occur, largely resulting from the late deliveries. Okay, तो इधर कितना स्टॉक आउट था यश कंपनी में जीट की वजह से 50 का, और इधर तो 360 टेप्स का हो रहा है, और उसका कॉस्ट कितना बोला है, उसका कॉस्ट बोला है 10. सी, Ram and company cannot rush order at a short notice. Ultra company anticipates loss contribution margin per package of 10 from stock outs. So stock outs की वजह से 10 का हम लोग को ₹10 पर पैकेज का हम लोग को लॉस हो रहा है. इधर 8 का हो रहा था, इधर 10 का हो रहा है. ओके, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. आप लोग एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करो तो इजीली हो जाएगा. प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी क्वेश्चन, कौन सा भी क्वेश्चन हम लोग सेकेंड टाइम जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आंसर देख के नहीं करना चाहिए. ओके, without watching answer we have to solve that question so that it will help us to practice. Okay, customer would likely return 2% of all the packages due to poor quality of the tape. Okay, so इधर क्या है ना कि ये वेल रेप्यूटेड कंपनी नहीं है राम एंड कंपनी. सो कुछ कस्टमर्स को वो उसका प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का लगेगा, तो 2% चांसेस है कि हम लोग को रिटर्न्स आ जाए कस्टमर्स के यहाँ से. And to handle this return, an additional cost of 25 per package would be incurred. Okay, so उसका जो रिटर्न करने का जो प्रोसेस है या फिर वो रिटर्न्स हैंडल करने के लिए हम लोग को 25 पर पैकेज का कॉस्ट इनकर होगा. ओके, कमेंट वेदर अल्ट्रा कंपनी कैन प्लेस एन ऑर्डर विथ राम एंड कंपनी. सो दो क्वेश्चन है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इधर क्वेश्चन बोला है कि कमेंट वेदर अल्ट्रा कंपनी शुड इम्प्लीमेंट जीट परचेस सिस्टम. ओके, सो हम लोग को 3 कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा. करंट सिचुएशन, देन जीट विथ यश कंपनी, जीट विथ राम कंपनी. ओके, सी here we have prepared that table. Computation of carrying cost. First of all,
ये क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन कैरिंग कॉस्ट में है, बाकी सारा क्वेश्चन ओके है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट अगर समझ में आया तो ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरिंग कॉस्ट के ऊपर हम लोग को फोकस करना है। ओके, सी इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है एक बार अगेन देखते हैं। सी इधर हम लोग को बोला है कि जो यश कंपनी है वो हम लोग को प्रोवाइड करेगी 150 पर पैकेट। ओके, सो ये 150 पर पैकेट है। नेक्स्ट बोला है कि बाकी कुछ नहीं, बाकी ये एनुअल डिमांड बोला है। ओके, इधर बोला है सी 10% एनुअल रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। ओके, सो हम लोग को 10% रिटर्न चाहिए। ओके, जो भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर 10% रिटर्न्स चाहिए। ठीक है, सो अभी कॉस्ट कितना है 150, उसका 10% एटलीस्ट हम लोग को इधर कंसिडर करना है। और उसके बाद ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो फिलहाल हम लोग को नहीं चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन बाद में होगा। अभी क्या है, द रिलेवेंट इंश्योरेंस मटेरियल हैंडलिंग एक्सेट्रा ₹10 पर पैकेज। ओके, so we are just considering carrying cost, material carrying cost. Okay, so 10% they have told us, so that's why we have to calculate 10%. After that, insurance, material handling and all, that is also carrying cost now, so that's why we have to calculate this ₹10 per package also. Let's start. Okay, first of all, cost is 150. Okay, we have to calculate 10% of this. ओके, सो 150 का 10% हम लोग को कैलकुलेट करना है। वो कितना मिला हम लोग को, ₹15। ओके, 150 का 10% ₹15। ओके, अदर कॉस्ट जो इंश्योरेंस, मटेरियल हैंडलिंग वो सब का है, वो हम लोग को कितना बोला है, ₹10। ओके, सो टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, पर यूनिट पर एनम 15 प्लस दिस 10, दैट इज 25। ओके, दैट इज 25 इन केस ऑफ करंट पॉलिसी। Okay, in case of current policy. Now next is average inventory. Okay, we will complete one column, then we will go for another. So here average inventory कितना बोला है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, सी इधर तक हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज अल्ट्रा वीडियो हैज़ डिसाइडेड वेदर और नॉट जीट to shift to the JIT and all. Yash company agrees to deliver 100 packages 6 times every 2 weeks instead of existing. Okay, so अभी हम लोग करंट का कर रहे हैं, so ये हम लोग के लिए रिलेवेंट है। एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम कितना है, 1200 पैकेजेस। सो एक टाइम पे 1200 पैकेजेस डिलीवर किया जाता है। ओके, सो अभी हम लोग इन्वेंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री, राइट। सो हम लोग को कितना डिलीवर होता है, 1200 यूनिट्स। अभी जो टेप है उसको हम लोग यूनिट बोलेंगे। ओके, सो 1200 यूनिट्स किया जाता है। और उसका जो लीड टाइम है, उसका लीड टाइम हम लोग को कितना बोला है, परचेस ऑर्डर लीड टाइम 2 वीक्स। ओके, परचेस ऑर्डर लीड टाइम इज 2 वीक्स। सो हम लोग इसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, राइट। परचेस ऑर्डर लीड टाइम, सो 2 वीक्स बोला है ना, सो डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 600 यूनिट्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। टोटल 1200 यूनिट्स प्रोवाइड किया जाता है करंट पॉलिसी में, एग्जिस्टिंग यानी कि करंट पॉलिसी, और उसका लीड टाइम 2 है, सो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज यूनिट्स मिल गया 600 यूनिट्स। ओके, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ओके, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ओके, सो अभी टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है हमारे पास, पर यूनिट दिस मच, यूनिट्स कितना है टोटल, दिस मच। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल, 600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट का कॉस्ट, दैट इज 25। सिंपली हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम लोग को कैरिंग कॉस्ट पर एनम मिल जाएगा, 600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट 25, यानी कि टोटल 15,000। ओके, सो फाइनल इज ₹15,000 is the carrying cost per annum. Okay, like that we have to calculate for JIT with Yash Tape and Company. So अगर हम लोग ने JIT सिस्टम फॉलो किया, JIT का इंफॉर्मेशन इधर दिया है यश का। ओके, सो यश में क्या बोला है, सी इधर तो ये सब इन्वेंट्री का बोला है। नेक्स्ट क्या बोला है, विथ एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹0.05। इसका मतलब JIT अगर हम लोग ने फॉलो किया तो ये एडिशनल कॉस्ट होगा। ओके, इफ़ वी विल फॉलो द JIT सिस्टम इन यश कंपनी,
so we have to incur this additional cost. Okay, what was the basic cost? Okay, बेसिक कॉस्ट हम लोग का कितना था? सी बेसिक कॉस्ट हम लोग का 150 था. ओके, प्लस एडिशनल कॉस्ट कितना बोला है? 0.05. ओके, सो नेक्स्ट न्यू कॉस्ट विल बी 150.05. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. 150.05. ओके, अभी इसका 10% बिकॉज हम लोग को 10% बोला है कैलकुलेट करने के लिए. ओके, सो 10% दैट इज 15.005. ओके, जैसा आ रहा है वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ₹15.005. ओके, नेक्स्ट एडिशनल कॉस्ट, इंश्योरेंस, मटेरियल हैंडलिंग एंड ऑल, वो सब तो वैसे ही रहेगा. आप लोग जीट फॉलो करो या फिर नॉर्मल पॉलिसी फॉलो करो, वो तो सेम ही रहेगा. तो इसके लिए वो ₹10 तो वैसे ही आएगा, राइट. अभी 15.005 प्लस दिस 10 इट कम्स टू 25.005. जैसा आ रहा है वैसे हम लोग लिख के रखेंगे 25.005. ओके, नेक्स्ट इज एवरेज इन्वेंट्री, राइट. अभी कितना हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है वो हम लोग देखेंगे. सी, यश कंपनी एग्रीज टू डिलीवर 100 पैकेजेस ऑफ वीडियो टेप्स 156 टाइम्स पर ईयर, 6 टाइम्स एवरी 2 वीक्स इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग. मतलब ये एग्जिस्टिंग था, इसका मतलब ये जीट है, राइट. सो 100 पैकेजेस हम लोग को डिलीवर किए जाएंगे एक टाइम पे. सो 100 पैकेजेस, राइट, यानी कि 100 यूनिट्स. सो 100 डिवाइड बाय, सबका लीड टाइम तो 2 ही है, 2 वीक्स ही है, सबका लीड टाइम उतना ही है, राइट. सो 100 डिवाइड बाय 2 इट कम्स टू 50 यूनिट्स. इट कम्स टू 50 यूनिट्स. नाउ इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट. 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस 25.005. 50 multiplied by 25.005. It is 1250. We will round off it now. Okay, because ये फाइनल आंसर है, so इसको राउंड ऑफ करेंगे. ₹1250. 0.25 तो उसको इग्नोर करेंगे, इतना ही लिखेंगे. सो ये भी हो गया. नेक्स्ट इज जीट विथ राम एंड कंपनी. इसको थोड़ा ध्यान से करो, रीड करना पड़ेगा. सी, राम एंड कंपनी ऑल्सो सप्लाइज वीडियो टेप्स, बिकॉज राम एंड कंपनी का इन्फॉर्मेशन इधर से है. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? इट एग्रीज टू सप्लाई एट 145. ओके, ये जो यश कंपनी 150 के ऊपर ओरिजिनली दे रहा था, वो ये जो राम एंड कंपनी है वो कितने के ऊपर देगा? 145 पर पैकेज. ओके, 145. सो उसका हम लोग को 10% फाइंड आउट करना है, राइट. सो कितना आ गया? ₹14.5. 10%. ओके, उसके बाद जो अदर कॉस्ट है उसके बारे में हम लोग को बोला है. सी, इधर तक हो गया. अंडर जीट सिस्टम, इफ़ द वीडियो टेप इज परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी, रिलेवेंट कैरिंग कॉस्ट यानी कि जो इंश्योरेंस, मटेरियल हैंडलिंग, जो ₹10 होता था ना, वो इधर 9 है. सी, 9 पर पैकेज अगेंस्ट 10 इन केस ऑफ परचेसिंग फ्रॉम यश एंड कंपनी. सी, यश एंड कंपनी में जो 10 होता था वो अभी 10 नहीं होगा, वो कितना होगा? 9 होगा राम एंड कंपनी में. ओके, सी, अभी टोटल फाइंड आउट करना है. 14.5 प्लस 9 इट कम्स टू 23.5. ओके, ₹23.50. ठीक है, अभी एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है. ओके, चलो एवरेज इन्वेंट्री. अभी इधर राम एंड कंपनी हम लोग को एक टाइम पे कितना डिलीवर करता है वो कुछ भी बताया हुआ नहीं है. ओके, द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट डिलीवरी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ राम एंड कंपनी. सो इट इज़ अज्यूम दैट इट विल बी सेम एज यश एंड कंपनी. यश एंड कंपनी जीट में हम लोग को 100 यूनिट्स देता है, उतना ही राम एंड कंपनी को देना पड़ेगा बिकॉज दोनों का सिस्टम सेम है, जीट है. ओके, सो इन these columns both are following JIT system, so that's why the number of units provided by Ram and company will be exactly same as Yash and company under JIT system. So Yash and company JIT में हम लोग को 100 यूनिट्स दे रहा था, लीड टाइम तो 2 ही रहेगा, सो नंबर ऑफ यूनिट्स सेम रहेगा, दैट इज 50 यूनिट्स. सो इट्स वेरी सिंपल. सो 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉस्ट 23.50. ओके, 50 multiplied by 23.5 it comes to 1175. Okay, we have to write this 1175.
So here we have completed carrying cost per annum. Now कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव एनुअल कॉस्ट, इसके हेल्प से ही हम लोग को समझेगा कि कौन सा सिस्टम बेटर है, करंट पॉलिसी या फिर जीट विथ यश, जीट विथ राम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज कॉस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट. ओके, अभी हम लोग यूज़ करेंगे एनुअल, हम लोग का जो डिमांड है या फिर एनुअल रिक्वायरमेंट है वो. सी, एनुअल डिमांड ऑफ अल्ट्रा वीडियो कंपनीज 15,600 पैकेजेस कि कौन से रेट पे दे रहा है ये करंट पॉलिसी में 150. ओके, सो सी एनुअल रिक्वायरमेंट इज 15,600 यूनिट्स विच इज प्रोवाइडेड एट 150. ओके, रुपीज़ 150. कितना आता है कॉस्ट देखते हैं. 15,600 टैप्स हम लोग को लगता है 150 के हिसाब से दे रहे हैं, तो कितना 23,40,000. ओके, सो परचेज कॉस्ट इज 23,40,000. Okay, now annual demand will remain same in any system. Okay, so annual demand तो सेम ही रहेगा 15,600. Okay, multiplied by ओरिजिनल कॉस्ट यश एंड कंपनी 150 चार्ज कर रहा था, राइट. उसके ऊपर एडिशनल कितना बोला था उसने, अभी हम लोग ने कैरिंग कॉस्ट के वक्त देखा था 0.05. सो प्लस 0.05, दिस इज 150.05. Okay, so we have to charge 150.05 because additional cost will be there due to JIT. So 15,600 multiplied by 150.05, it comes to 23,40,780 rupees. 23,40,780, right. Next, annual demand will remain same. Okay, multiplied by, now this Ram and company is ready to provide us at the rate of 145 per package. So here it will come 145. Okay, rupees 145. So 15,600 is the annual demand multiplied by 145 is the rate. So 22,62,000. Okay, rupees 22,62,000. Okay, next is ऑर्डरिंग कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट. सी, अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम मिलेगा. सी, ₹20 पर ऑर्डर. सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 20 पर ऑर्डर. अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना ऑर्डर्स हो रहा है. ओके, एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बोला है यहाँ पे. सो एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम शोज दैट 1,200 पैकेजेस 13 टाइम्स. इट मीन्स दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ओके, 13 टाइम्स जो बोला है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है. ओके, सो 13 ऑर्डर्स. ओके, 13 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹20 पर ऑर्डर. ओके, ₹20 पर ऑर्डर. 13 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आया 260, राइट. ₹260. ओके, लाइक दैट इन लोग का भी हम लोग को देखना पड़ेगा कितना ऑर्डर्स है. सी, ये तो जीट का सिस्टम बोला है. सो जीट की इंफॉर्मेशन में क्या बोला था, यश टेप एंड कंपनी के कितना टाइम्स 100 पैकेजेस 156 टाइम्स पर ईयर. 156 टाइम्स. सो दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स 156 orders multiplied by ₹20 per order. Okay, 20 per order. So 156 multiplied by 20, it comes to 3,120 rupees. 3,120. Okay, next is of this राम एंड कंपनी. अभी राम एंड कंपनी में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कुछ भी बोला नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है क्योंकि जीट है. तो यश एंड कंपनी का जीट और राम एंड कंपनी का जीट का जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो सेम ही होना चाहिए. ओके, बिकॉज इधर जो यूनिट्स कैलकुलेट किया वो भी सेम ही किया था क्योंकि जीट में सिस्टम सेम होना चाहिए. जो कॉस्ट है वो डिफरेंट रहेगा क्योंकि कंपनी अलग है तो कॉस्ट डिफरेंट चार्ज करेगी लेकिन जो यूनिट्स है वो सेम रहेगा. इसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी सेम रहेगा. ओके,
Number of orders of JIT with Yash and JIT with Ram will remain same because number of units is same. Okay, so number of orders 156 orders as it is, like this JIT of Yash multiplied by rupees 20 per order. So ordering cost will exactly remain same as JIT with Yash and company. So 156 multiplied by 20, it comes to 3120, right? Next we have to calculate carrying cost, okay, which we have already calculated. Okay, just we have to write carrying cost per annum. So जैसा है वैसे ही पूरा लिखना है. 15,000 total, this is total, so 15,000. Here 1,250, here 1,175. okay. Next stock out cost. okay, stock out cost. अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसमें स्टॉक आउट होने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्टॉक हम लोग ला के रखते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ करंट पॉलिसी देयर विल बी नो स्टॉक आउट बिकॉज we are keeping extra stock, so there is no question of stock out, so dash. Next, in the current policy the Yash company is providing us that tapes. So Yash company is well reputed company, so in the first para they have told us that there is no inspection cost in current policy, that's why inspection cost नहीं आएगा. और वो एक रेप्यूटेड कंपनी है तो कस्टमर रिटर्न का चांसेस नहीं है, इसके लिए करंट पॉलिसी में कस्टमर रिटर्न भी नहीं आएगा. ओके, लेट्स चेक वंस सो दैट यू विल क्लियर विद दिस. ओके, सी Yash company is providing to us in the current policy no coming inspection is necessary because Yash company is has superb reputation for delivery of quality merchandise, so कुछ भी इंस्पेक्शन कॉस्ट नहीं है, सो दैट्स वाई डैश. ओके, सो अभी इंस्पेक्शन नहीं है, इसका मतलब इंस्पेक्शन कॉस्ट नहीं आएगा. स्टॉक आउट का मैंने बोला क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है, और कस्टमर रिटर्न का चांसेस ही नहीं है क्योंकि अच्छा क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं करंट पॉलिसी में. ओके, नेक्स्ट इज अभी जीट में है तो हम लोग का स्टॉक आउट तो होना ही है, थोड़ा बहुत स्टॉक आउट तो चलता ही रहता है जीट में. सो यश कंपनी में कितना है, सी दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ जीट विथ यश. सो 50 स्टॉक आउट्स बोला है. ओके, सी 50 वीडियो टेप पैकेजेस अंडर जीट सिस्टम, स्टॉक आउट्स ऑफ 50, राइट. सो कितना स्टॉक आउट्स है, 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट्स है. ओके, मल्टीप्लाइड बाय उसका कॉस्ट कितना बोला है, सी स्टॉक आउट का कॉस्ट कितना बोला है, 8. ओके, सो ₹8. 50 units multiplied by 8, it comes to 400 rupees. 400. okay. Now in case of Ram and company का स्टॉक आउट के बारे में इधर बोला है 360 टेप्स यानी कि 360 यूनिट्स और उसका कॉस्ट है 10. ओके, सो 360 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10, सो कितना होगा, ₹3,600 is the stock out cost of JIT with Ram and company. Next is inspection cost. okay, अभी इंस्पेक्शन कॉस्ट ये जो है ये यश एंड कंपनी का ही है, राइट. सो यश एंड कंपनी में अगर JIT भी किया तो भी क्वालिटी तो सेम ही रहेगा, रेपुटेशन भी उन लोग का सेम रहेगा, इसके लिए इंस्पेक्शन नहीं आएगा, कस्टमर रिटर्न्स नहीं आएगा. ओके, दिस इज JIT विथ यश कंपनी बट कंपनी इज सेम, system is different, that is this is the current policy and this is the JIT policy, but company is same, so services will remain same. That's why no inspection cost here also and no customer return cost here also, because well known well reputed company is there which is providing quality services, quality goods, quality products, so that's why inspection cost is nil and customer return cost is nil. okay, now focus on JIT with the Ram and company inspection cost. okay, see incurring additional inspection cost of 0.05 per package. okay, so annual requirement is 15,600 package, right, multiplied by cost ₹0.05. okay, let's check inspection cost. So
15,600 multiplied by 0.05, it comes to 780. So inspection cost is 780, right? Now last is customer return cost. Okay, information is given to us. See, customer would likely to return 2% of all the packages due to poor quality of tape, and to handle this return and additional cost is 25 per package would be incurred. Okay, so 2% of all package, right? See, 15,600 ऑल पैकेज यानी कि एनुअल रिमांड, उसका 2% हम लोग को चाहिए. ओके, और उसका जो कॉस्ट रहेगा वो कितना रहेगा, ₹25 पर पैकेज, ₹25 पर पैकेज. अभी हम लोग ने देखा, सी 25 पर पैकेज. सो 15,600 एनुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 2% मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इज 25. सो 7,800. ओके, 7,800 is the customer return cost in case of GT with Ram and Company. Now simply we have to take total so that we will be able to compare the policies. First of all, this purchasing cost, that is 23,40,000 plus this ordering cost 260 plus this carrying cost 15,000. Okay, other cost nil, so final figure is 23,55,260. Okay, next here GT with Yash Company, that is 23,40,780 purchasing cost plus 3,120 this ordering cost plus carrying cost is 1,250 plus this stock out cost is 400. Okay, total is 23,45,550, 23,45,550. And now last one, that is GT with Ram, 22,62,000 purchasing cost. Okay, plus this carrying cost, sorry, ordering cost 3,120 plus carrying cost 1,175 plus this stock out cost 3,600 plus this inspection cost 780 plus this customer return cost 7,800. Total is 22,78,475. 22,78,475. Now we have to compare which policy or which system is better. Here 23 lakh, 23 lakh, and here it is 22 lakhs. Okay, so it is better to go for GT with Ram and Company. Okay, we can go for GT with Ram and Company. Okay, conclusion is given in the book. Okay, see, compared to the present system, GT with Yash Company will result to the cost saving of this much. Hence GT may be implemented. Okay, so first of all GT implement करना चाहिए कि नहीं, उसका डिस्कशन इधर हुआ है. सी, प्रेजेंट पॉलिसी में तो 23,55,000 इतना कॉस्ट था और इधर 23,45,000, राइट. सो GT अगर फॉलो किए तो कॉस्ट कम आ रहा है. ओके, इन केस ऑफ GT, ओके, cost is less. So first decision is we can move for GT, we can go for GT. Okay, now GT with Yash Company is better or GT with Ram Company is better, that conclusion is given in the next part. Okay, see, comparing present system, GT with Yash and GT with Ram Company result in the least cost total cost. Hence the packages may be bought from Ram and Company. हम लोग ने भी वही बोला था कि Ram and Company में सबसे कम कॉस्ट है, so इसके लिए हम लोग Ram and Company से ऑर्डर कर सकते हैं गुड्स. Okay, so GT with Ram and Company is giving a very less cost, so that is better for us. So here we have completed illustration number 8. Along with that we have completed study note number 4 of CMA final paper number 15. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.